آج چونکہ میں اسپیرے کے بیس میں تھا اس لیے خاص طور پر بیڑیاں خریدی تھی اور ادھر ادھر پھرنے کے بجائے میں نے یہاں بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ پولیس والوں کی نظروں میں رہوں گا تو شبہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی مجھے یہاں نندنی سے ملنا تھا۔ وہ پولیس انسپیکٹر بڑا احمق ثابت ہوا تھا۔ اسے میری اور رتنا کی تلاش تھی۔ اس کے آنے سے پہلے پولیس والے بس سے اترنے والوں کو چیک کر رہے تھے اور اس نے آتے ہی یہ چیکنگ ختم کرا دی تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کا مطلوبہ آدمی ان لوگوں میں بھی ہو سکتا تھا جنہیں چیک کیا جا رہا تھا۔ انسپیکٹر خود ایک کانسٹیبل کے ساتھ جیپ میں بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں درخت کے نیچے بیٹھا بیڑی کے کش لگاتا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ بس دفتر کے سامنے سے ہٹ کر وہاں سے تقریباً 20 گز دور سٹینڈ پر چلی گئی تھی، جہاں پہلے بھی ایک بس کھڑی تھی۔ بس سے اترنے والے کچھ لوگ ادھر ادھر جا چکے تھے اور کچھ ابھی تک وہاں کھڑے تھے۔ ان میں 3-4 عورتیں بھی تھیں۔ اس بس میں ہمارے ساتھ صرف 3 غیر ملکی سیاح آئے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی تھی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک ادھیڑ عمر آدمی۔ میرے خیال میں مرد اور عورت میاں بیوی تھے اور وہ لڑکی ان کی بیٹی۔ وہ یورپ کے کسی ملک کے رہنے والے تھے۔ آفس کے برآمدے میں گائیڈ کی وردی پہنے ایک باری بھرکم ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا اور 2-3 مقامی آدمی اس سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ نندنی مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ ششاوری نے اگرچہ اس کا کچھ حلیہ بھی بتایا تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی شناخت تو یہی تھی کہ وہ گائیڈ کے ڈریس میں ہوگی۔ عورتوں کے لیے گائیڈ کا ڈریس گلابی ساڑی ہی تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر جا چکے تھے، صرف چند ہی لوگ وہاں رہ گئے تھے۔ ایک تو وہی یورپین فیملی تھی، باقی ہندوستانی تھے جن کا تعلق مختلف شہروں سے تھا۔ 5 مرد تھے جنہوں نے پینٹ شرٹس وغیرہ پہن رکھی تھی۔ 3 عورتیں تھیں اور تینوں نے ساڑیاں پہن رکھی تھی۔ میں نے ایک اور بیڑی سلگائی۔ ابھی چند ہی کش لگائے تھے کہ گلابی ساڑی میں ملبوس ایک عورت دفتر سے نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ اس کے دائیں طرف سینے پر پیتل کا ایک بیج بھی لگا ہوا تھا۔ وہ یقیناً نندنی ہی تھی۔ نندنی کچھ دیر تک سیاحوں سے بات کرتی رہی، پھر قریب کھڑے ہوئے گائیڈ کو ہدایات دینے لگی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ گپتا تھا۔ گپتا سیاحوں کی پارٹی کو لے کر ایک طرف چلا گیا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا بیڑی کے کش لگاتا رہا۔ نندنی کچھ دیر تک برآمدے میں کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اس نے سرسری سی نگاہ سے میری طرف بھی دیکھا، پھر وہ اندر چلی گئی۔ اب دفتر کے آس پاس کوئی نہیں رہا تھا۔ دونوں بس کے ڈرائیور بسوں کے قریب ایک بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے آخری کش لے کر بیڑی ایک طرف پھینک دی، تھیلا کندھے پر لٹکایا اور بین سنبھالتے نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے دفتر کی طرف چل پڑا۔ برآمدے میں رک کر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ بڑا سا کمرہ تھا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 میزیں لگی ہوئی تھی۔ دیواروں پر محکمہ سیاحت کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ ایک ہندوستان کا نقشہ اور اس کے ساتھ ایک راجستھان کا نقشہ آویزاں تھا۔ پوسٹروں میں اہم تاریخی عمارتیں دکھائی گئی تھیں۔ دائیں طرف والی میز کے پیچھے نندنی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک رجسٹر پر کچھ لکھ رہی تھی۔ آہٹ پا کر اس نے میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، تم اندر کیوں گھس آئے ہو؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایسی جگہ بھیک مانگنا جرم ہے جہاں غیر ملکی سیاحوں کی آمد و رفت ہو؟ تمہیں 3 مہینے کے لیے بند کیا جا سکتا ہے۔ میں بھکاری نہیں ہوں بی بی جی، میں نے ٹھیٹ پنجابی لہجے میں جواب دیا۔ میرے منہ سے پنجابی سن کر وہ اچھل پڑی۔ مجھے ششاوری نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ پٹیالہ کی رہنے والی ہے۔ رتنا کا تعلق بھی جالندھر سے تھا اور میں بھی پنجاب ہی کا رہنے والا تھا۔ اوہو، تو تم پنجاب کے رہنے والے ہو، اور تمہیں شاید کسی طرح یہ پتا چل گیا ہے کہ میں بھی پنجاب کے رہنے والی ہوں، اس لیے پنجابی بول کر مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، تم دیکھ ہی چکے ہو کہ پولیس کو بعض خطرناک مجرموں کی تلاش ہے۔ وہ ابھی پکڑ دکڑ شروع کر دیں گے۔ میں تمہارے ساتھ اتنی رعایت کر سکتی ہوں کہ تمہیں پولیس کے حوالے نہ کروں۔ بہتر ہوگا کہ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تو چلا جاؤں گا بی بی جی، پر تمہاری اس پروہنی کا کیا ہوگا جو کل شام سے تمہارے گھر میں آئی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، کیا؟ وہ اچھل پڑی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں کل شام کو بھی یہاں تھا؟ اس عورت کو میں نے ایک گائیڈ کے ساتھ آتے دیکھا تھا جو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ عورت۔ 1 منٹ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، چند لمحے گہری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، تم تو وہی ہو۔ ہاں، وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ میں نے اس کی بات پوری کر دی۔ اوہ، نندنی کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ 1 منٹ، میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تھوڑی سی عقل میری کھوپڑی میں بھی ہے، نندنی نے جواب دیا۔ کل شام جب ششاوری لڑکی کے ساتھ یہاں آئی تھی تو اس وقت آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ان دونوں کے بارے میں یا تو تمہیں معلوم تھا یا مجھے۔ اب تم بہت اچھا بیس بدلا ہے تم نے۔ میں کھڑکی سے دیکھ رہی تھی،
बस से उतरते ही एक पुलिस वाले ने तुम्हें रोका भी था, मगर इंस्पेक्टर के आ जाने से तुम्हारी गुलू खुलासी हो गई। बहरहाल इस तरफ चले जाओ। उसने दफ्तर की पिछली तरफ इशारा किया। दरख्तों के उस झुंड के परली तरफ एक इमारत थी जिसके चारों तरफ ऊंची चार दीवारी थी। उस चार दीवारी के अंदर की तरफ से भी कुछ दरख्त नजर आ रहे थे और पिछली तरफ भी थोड़े थोड़े फासले पर कुछ नारियल के दरख्त नजर आ रहे थे। मैं दरवाजे के सामने रुक गया। पहले किसी दर्ज से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो दरवाजा फौरन ही खुल गया। वो रत्ना थी। आइए पधारिए जोगी महाराज, रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। तुम्हें कैसे पता चला कि दस्तक देने वाला मैं हूँ? मुझे नंदनी ने फोन पर बता दिया था, रत्ना ने कहा। अंदर आ जाओ या बाहर ही खड़े रहोगे? मैं अंदर दाखिल हो गया। रत्ना ने दरवाजा बंद कर दिया। शिशावरी ने और फिर नंदनी ने भी मुझे कहा था कि ये क्वार्टर है, लेकिन ये अच्छा खासा बंगला था। इमारत ज्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे ख्याल में 3-4 कमरे जरूर होंगे। चारों तरफ बहुत वसी और ईज कंपाउंड था। इमारत के सामने वाला हिस्सा खूबसूरत लॉन पर मुश्तमिल था। नारियल और ताड़ के कई दरख्त थे। कुछ और कदावर पौधे भी नजर आ रहे थे। और फिर 2 हिरनों को देखकर मैं उधर मुतवज्जे हो गया। वो इमारत की पिछली तरफ से एक दूसरे के पीछे भागते हुए आए थे। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो 2-3 खरगोश भी नजर आ गए। कई मुर्गियां भी नजर आ रही थी। यहाँ तो अच्छा खासा चिड़िया घर बना हुआ है, मैंने कहा। पिछली तरफ जाओगे तो तुम्हें मोर भी नजर आएंगे, रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल पहले अंदर तो चलो, चिड़िया घर बाद में देख लेना। हम अंदर आ गए। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था। क्वार्टर 4 कमरों पर मुश्तमिल था। एक सिटिंग रूम के तौर पर आरास्ता था। राजस्थानी फर्नीचर था जो पाकिस्तान के सिंधी फर्नीचर से मिलता जुलता था। एक कमरा नंदनी के इस्तेमाल में था और दूसरा अब रत्ना के पास था। तीसरे कमरे में कुछ फालतू सा सामान रखा हुआ था। रत्ना मुझे कमरे दिखाती फिर रही थी। थैला अभी तक मेरे कंधे पर लटका हुआ था। आखिरकार हम रत्ना वाले कमरे में आ गए। मैंने सिटिंग रूम में टेलीफोन रखा हुआ देख लिया था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये दफ्तर वाले टेलीफोन की एक्सटेंशन लाइन थी और नंदनी ने इस फोन पर रत्ना को मेरे बारे में बता दिया होगा। यहाँ तक पहुँचने में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई, रत्ना ने पूछा। शिशावरी ने अक्लमंदी की थी। कल शाम मेरे लिए ये बीन और कपड़े ले गई थी, मैंने जवाब दिया। इनकी वजह से मुझे यहाँ तक आने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। अलबत्ता यहाँ बस से उतरते ही पुलिस वालों ने पूछगछ शुरू कर दी और एक कांस्टेबल तो मेरे थैले की तलाशी भी लेने लगा था। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे तफसील से बताने लगा। आखिर में कह रहा था, मुझे हैरत है कि पुलिस को कैसे पता चल गया कि हम अंबर पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि पुलिस को किसी और पर शुबा हो गया हो, लेकिन हमें मोहतात रहना पड़ेगा, रत्ना ने जवाब दिया। तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। वो कमरे से चली गई। मैंने थैले में से मैले कपड़े निकाल कर एक तरफ डाल दिए। उनके नीचे से दूसरे कपड़े निकाल लिए। कपड़े बदल कर जोगियों वाले कपड़े एक तरफ रख दिए। मालाएं और बीन भी उन्हीं कपड़ों में लपेट दी थी। इतने में रत्ना मेरे और अपने लिए चाय ले आई। तुम्हारा तकिया कहाँ है और इनका क्या करना है? मैंने थैले पर हाथ मारते हुए कहा। तकिया तो ये रखा है, रत्ना ने पलंग पर रखे हुए तकिए की तरफ इशारा किया। और मेरा ख्याल है तकिए की चीजें भी इस थैले में डालकर थैले को उस अलमारी में रख दिया जाए। मैंने मुड़कर देखा। वो अलमारी दीवार के अंदर बनी हुई थी, जिसके आगे 2 पट वाला दरवाजा लगा हुआ था। तो फिर सब कुछ समेट कर थैला अंदर रख दो, मैंने कहा। नंदनी को पता तो नहीं चला कि तुम्हारी इस तकिए में क्या है? नहीं, रत्ना ने कहते हुए अपना कप मेज पर रख दिया और तकिया उठाकर उसका गुलाफ खोलने लगी। मैं भी थैले में से फालतू कपड़े निकालने लगा। तमाम जेवरात और नोटों के बंडल उन्हीं साड़ियों में अच्छी तरह लपेट कर थैले में डाल दिए गए। अलमारी के निचले खाने में कुछ बेकार और फालतू चीजें भरी हुई थी। रत्ना ने थैला उनके नीचे छुपा दिया और अलमारी बंद करके ताला लगा दिया। हजमी कुफल था, जिसकी चाबी रत्ना ने अपने गिरेबान में डाल ली और मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। बाहर चल कर बैठते हैं ताज़ा हवा में, मैंने अपना कप उठाते हुए कहा और जवाब का इंतजार के बगैर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर लॉन में बांस की चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। हम उन कुर्सियों पर बैठ गए। कई दिन बाद इस तरह आज़ाद और खुली फजा में बैठे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बंगले के इर्द गिर्द का कंपाउंड तकरीबन 2 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल था। 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। यहाँ हम इस लिहाज से भी महफूज थे कि हमें बाहर से नहीं देखा जा सकता था। चाय पीने के बाद मैं उठकर टहलता हुआ पिछली तरफ आ गया। सामने की तरफ तो खूबसूरत लॉन था, लेकिन पिछले हिस्से पर शायद ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। खुदरो घास और छोटी झाड़ियां फैली हुई थी। एक तरफ बैरूनी दीवार के साथ बहुत बड़ा हिस्सा जंगले की तरह गिरा हुआ था। ये दरअसल पिंजरा था जो 20 फुट चौड़ा और 30-35 फुट लंबा था। उसकी बुलंदी अपनी दीवार के बराबर थी। एक तरफ दीवार थी, 3 अतराफ में और छत पर जाली लगी हुई थी।
उस पिंजरे के अंदर कई ऐसे पौधे भी थे जिनकी बुलंदी 7 फुट से ज्यादा नहीं थी। वो खूबसूरत मोर उस पिंजरे में टहल रहे थे। एक मोर ने पंख पूरी तरह फैलाए हुए थे, लेकिन हमें देखकर उसने पंख सिमेट लिए। इस तरह अगरचे खुदरो घास और झाड़ियां बकसरत फैली हुई थी। ऐसी जगहों पर सांपों का खतरा भी होता है। राजस्थान में वैसे भी सांप बकसरत पाए जाते हैं, मगर जिस जगह मोर मौजूद हों, सांप वहां से मीलों दूर रहता है। मोर को सांप का बदतरीन दुश्मन समझा जाता है। सांप मीलों दूर से मोर की बू सूंघ लेता है और उस तरफ का रुख नहीं करता। दोनों हिरन भी बड़े खूबसूरत थे और आजादी से घूम फिर रहे थे। खरगोश भी अगरचे 2 ही थे, मगर उन्होंने जगह जगह गड्ढे खोद रखे थे। नंदनी को इस किस्म के जानवर पालने का शौक है, मगर खरगोशों से वो तंग आ चुकी है। शायद आजकल में इस जोड़ी को बेच दे। रत्ना ने कहा, खरगोश प्यारा जानवर है, मगर खतरनाक भी। पूरे घर को खोद कर रख देता है। मैंने कहा और दरवाजे के करीब आकर रुक गया। दरवाजे के कुंडे में एक मोटा सा मुड़ा हुआ तार फंसा हुआ था। रत्ना ने वो तार निकालकर दरवाजा खोल दिया। सामने दूर तक इक्का दुक्का नारियल और दूसरे दरख्तों का सिलसिला चला गया था। उससे आगे चटियल मैदान सा था जो बतदरीज नशेब की तरफ चला गया था। उस मैदान के परली तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थी। नंदनी बता रही थी कि यहाँ किसी जमाने में एक छोटी सी झील हुआ करती थी। रत्ना कह रही थी, इस झील की वजह से आसपास का इलाका सरसब्ज था, लेकिन फिर इस तरफ जमीन में एक कटाव सा पैदा हो गया और झील का सारा पानी उस कटाव के रास्ते जमीन के अंदर ही अंदर किसी और तरफ चला गया। अब बरसात के मौसम में भी यहाँ पानी नहीं रुकता। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, अंबर राजस्थान की कदीम तरीन आबादी है। सबसे पहले 1400 कबल मसीह में भील और मीना कबाइल आकर आबाद हुए थे। फिर आर्या राजस्थान में दर आए। उन्होंने राजस्थान के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। भील और मीना कबाइल बिखरते चले गए, लेकिन अंबर और उसके गिरदो नवा के इलाकों में मीना कबीले ही का कब्जा रहा। राजस्थान का कदीम और सबसे पहला दारुल हुकूमत अंबर ही था, लेकिन इस झील के खुश्क हो जाने और बाज़ दूसरी वजूहात की बिना पर यह शहर वीरान और जयपुर आबाद होता चला गया। आज यहाँ लोग सिर्फ सैर व तफरीह और इन कदीम तारीखी इमारतों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ आने वालों को हाथियों पर बिठाकर शहर की सैर कराई जाती है। बहुत खूब। मैंने तौसीफी नजरों से रत्ना की तरफ देखा। नंदनी के साथ एक ही रात में तुमने इतनी सारी मालूमात हासिल कर ली। मेरे ख्याल में तुम चंद रोज और उसके साथ रह जाओ तो बहुत अच्छी गाइड बन सकती हो। रत्ना के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। रात को हम दोनों अकेली थी और देर तक बैठी बातें करती रही। नंदनी चूंकि गाइड है, इसलिए वो मुझे इसी हवाले से बहुत कुछ बताती रही। और क्या बातें हुई? यानी हमारे बारे में? मैंने पूछा। शिशावरी ने उसे बताया था कि तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू। आगरा में एक ही मोहल्ले में रहते थे। मुझे तुम भगा कर लाए हो। मेरे पिताजी ने हमारे खिलाफ पुलिस में भी रिपोर्ट करवा रखी है, इसलिए हम कुछ अरसा रूपोश रहना चाहते हैं। उसने तुम्हारी जुबान और बातों से ये अंदाजा तो नहीं लगाया कि तुम हिंदू नहीं बल्कि सिख हो? और मेरे ख्याल में नंदनी भी सिख है। मैंने कहा, हाँ वो सिख है, मगर उसने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर एतमाद किया जा सकता है। वैसे भी 2-4 दिनों की तो बात है। रत्ना ने कहा, 2-4 दिन तो बहुत लंबी मुद्दत है। 2-4 घंटों में ही बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल हमें मोहतात रहना होगा। मैंने कहा। रत्ना ने दरवाजा बंद कर दिया और हम दोबारा टहलते हुए सामने वाले लॉन की तरफ आ गए। और वो दूसरा आदमी गुप्ता, वो कैसा है? उससे तुम्हारा सामना हुआ या नहीं? मैंने एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। रात को उसने खाना हमारे साथ ही खाया था, रत्ना ने जवाब दिया। नंदनी ने उसे बताया था कि मैं उसकी कजन हूँ और पंजाब से आई हूँ। मेरा पति भी आने वाला है, सो आज तुम भी आ गए। वो बात करते हुए मुस्कुरा दी। वैसे वो कैसा आदमी है? मैंने एक और सवाल किया। वो नंदनी का मातहत है, लेकिन इसके अलावा भी वो बहुत मती और फर्माबरदार किस्म का आदमी है। इसका अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि रात के खाने के बाद बर्तन उसी ने धोए थे और सुबह का नाश्ता भी उसी ने तैयार किया था। क्या वो भी यही रहता है? मैं चौंक गया। नहीं, रत्ना ने नफी में सर हिलाया। उसकी रिहाइश दफ्तर के पीछे वाले कमरे में है। वैसे रात काफी देर तक यहाँ बैठा रहा था। मैंने सुबह ही नंदनी से कह दिया था कि जब तक हम यहाँ रहेंगे खाना वगैरह मैं पकाया करूंगी। तो फिर अब क्या पकाने का इरादा है? मैंने पूछा। सालन तो मैंने सुबह ही पका लिया था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यहाँ मुर्गियों की कमी नहीं, हम कई रोज तक दावत उड़ा सकते हैं। वैसे नंदनी ने पूरे घरदारी का एहतमाम कर रखा है। घर में पूरा राशन भरा हुआ है, दालें, आटा, चावल, हर चीज मौजूद है। तो ठीक है, तुम आटा गूंद कर रोटी पकाने की तैयारी करो और मैं थोड़ी सी नींद कर लूं। मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा। रात क्या करते रहे थे जो अब नींद आ रही है? रत्ना ने मुझे घूरा। तुम ही तो मुझे वहाँ शिशावरी के पास छोड़ आई थी। यशोधर काका तो जल्द ही सो गया।
اور ہم دونوں رات دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ہم دونوں کمرے میں آ گئے۔ میں تو پلنگ پر لیٹ گیا، رتنا کچھ دیر کرسی پر بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں واقعی تھک گیا تھا، میری بھی آنکھیں بند ہونے لگی۔ نندنی دوپہر کو آئی اور کھانا کھا کر چلی گئی۔ رتنا نے مجھے جگانے کے بہت جتن کیے تھے، مگر میں اتنی گہری نیند سویا تھا کہ اگر کوئی میرا گلا بھی کاٹ دیتا تو مجھے پتہ نہ چلتا۔ شام 6 بجے کے قریب شیشاوری بھی آ گئی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ رکنے کے بعد واپس چلی گئی۔ اس کے ہوتے ہوئے ہی نندنی نے بتایا تھا کہ صبح پولیس جن ملزموں کی تلاش میں آئی تھی وہ پکڑے گئے ہیں۔ اس اطلاع پر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پولیس کو تو ہماری تلاش تھی، پکڑے کون بے گناہ گئے تھے۔ اور پھر نندنی نے یہ انکشاف کیا کہ صبح ایم آئی روڈ پر جہاں ماربل، پیتل، تانبے، چمڑے اور لکڑی کی آرائشی مصنوعات وغیرہ کی سینکڑوں دکانیں تھیں، صبح سویرے ایک قتل ہو گیا تھا۔ ایک غیر ملکی سیاح کو لوٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مزاحمت پر اسے چھرا مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس واردات میں ایک عورت اور ایک مرد ملوث تھے۔ پولیس انہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی، جن کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ جے پور سے امبر کی طرف فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس بھی ان کے تعاقب میں یہاں پہنچ گئی اور آخر کار انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس رات بھی ہم دیر تک جاگتے رہے۔ نندنی کا تعلق پٹیالہ کے ایک سکھ گھرانے سے تھا۔